Vishnu Padaya Krishna Vishnu Srimate Bhakti Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shanyavadi Ashata Vishata Namaste Saraswati Nirvishesha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Prabhu Nityananda Gadadhar Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhaktavinda Jaya Shri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Sudhadra, Jaya Jagannath, Baladeva, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol. जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद स्पेशली भी देना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आज आना थोड़ा कठिन था। मैंने सोचा नहीं था इतने लोग आएंगे, क्योंकि आज एक बहुत ही विशेष दिन है। आपको पता है आज क्या है? हाँ जी, रंगपंचमी। मुझे लगा आप बोलोगे इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है। रंगपंचमी से ज्यादा महत्वपूर्ण है T20 वर्ल्ड कप फाइनल। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट, मुझे लगा था माता है तो जरूर आएंगे बिकॉज वो क्रिकेट नहीं देखती, लेकिन शायद इधर से कोई नहीं आएगा प्रभु लोगों में से, लेकिन फिर भी आप लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो लाइफ इज अ जर्नी, जीवन एक यात्रा है ऐसा कहते हैं। लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम बी टू डी। बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, डी स्टैंड्स फॉर डेथ। तो जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा है। और बी और डी के बीच में क्या आता है? सी, ABCD। सी स्टैंड्स फॉर चॉइसेस वी मेक। हम उस जीवन में क्या चॉइसेस लेते हैं। चॉइसेस मतलब कौन से विकल्प हम चुनते हैं, कौन से चुनाव करते हैं, राइट। तो सबके जीवन में वो विकल्प आते हैं। कुछ लोग हैं जो आज रंगपंचमी में बहुत रंग लगा करके आए, बहुत खेला उन्होंने। कुछ लोग जो घर में रहना पसंद करते हैं, नहीं हम रंग नहीं खेलेंगे, उनको रंग अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही आपके पास चॉइस थी। कुछ लोग हैं आज प्रैक्टिकली पूरा भारत वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा होगा। आई थिंक मैच स्टार्ट हो गया होगा कि होने वाला है, अभी हो गया है।
तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो कृपया मोबाइल पे मैच ना देखें, ध्यान से सुने और बीच बीच में स्कोर ना बताएं आसपास वालों को। सो चॉइसेस, वॉट एवर चॉइसेस वी मेक, तो इच्छा के अनुसार हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, राइट। 10वीं के बाद हमको चॉइस लेना होता है, 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, उसके अनुसार हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। 12वीं के बाद फिर हमको चॉइस लेना होता है, विकल्प आता है कि हम कौन सा कॉलेज चुनेंगे, कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे, उसके अनुसार हमारा भविष्य डिसाइड होता है, राइट। पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर चॉइसेस आती है कि नौकरी कौन सी लेना है। वैसे चॉइसेस आजकल आती नहीं इतनी, नौकरी लगती नहीं इतनी। जिनकी लगी है उनकी भी नौकरियां जा रही है, तो फिर चॉइस नहीं है, जो रख लेगा हम तो कर लेंगे नौकरी, राइट, जितना देगा ले लेंगे। लेकिन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चॉइस आती है, किससे शादी करना है, मन पसंद से करना है, अरेंज करना है या लव करना है, राइट। आजकल लोग लव मैरिज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बिकॉज होता है कि हम जान पहचान करके करेंगे तो जी ज्यादा अच्छा, नहीं तो पता पड़ा कौन सी सोनम आएगी 15 टुकड़े करके डब्बे में डालेगी। राजा साहब डब्बे में मिलेंगे। तो इससे बेटर है कि हम लव मैरिज करेंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं। सच चॉइसेस, राइट। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चॉइस क्या है? सबसे श्रेष्ठ चॉइस है भगवान के पास आना। हाँ बोल सकते हैं, हरि बोल। ऐसा क्यों? दुनिया का हर एक व्यक्ति धोखा दे सकता है, दुनिया का हर एक व्यक्ति पलट सकता है, समय के साथ साथ दुनिया का हर एक व्यक्ति घूम सकता है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है। एंड इट्स इन गारंटी, दुनिया में कोई अपना नहीं है, बहुत मुश्किल है, सिर्फ माँ बाप ही हैं जो प्रेम करते हैं, उसके अलावा कोई अपना नहीं। जितने भी चॉइसेस हम ले लें, पार्टनर्स के, स्पाउस के, बॉस के, जॉब्स के, सब डिपेंड करता है पैसे पे, राइट। लोग बोल सकते हैं प्रोजी आप कितना भी कहो हम तो बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार हैं क्योंकि उस हिसाब से रिश्वत मिली नहीं है। 500,000 रुपए की रिश्वत कोई देगा तो ईमानदारी दिखाएंगे, थोड़ा अमाउंट बड़ा करके 5 लाख करे, 5 करोड़ करे तो बात करें। राइट। सो इंग्लिश में कहते हैं और सो कॉल्ड मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारी तथाकथित जो ईमानदारी है वो इसलिए क्योंकि अवसर नहीं मिला है, जब अवसर मिलेगा तो अच्छे अच्छे पलट जाते हैं। इसलिए देखते हैं कि दुनिया में हर एक व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के पास आता है उसी ने अपने जीवन में सबसे बढ़िया चुनाव किया है, सबसे अच्छी चॉइस सिलेक्ट की है। इसलिए आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। इस संडे शाम को T20 वर्ल्ड कप छोड़ करके आप आए हैं सत्संग सुनने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में। एक बार आप सबके लिए तालियां। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आई कम टू माय टॉपिक टुडे। देखिए, प्राय दुनिया में हर एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसको करने के पीछे एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? नहीं, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं। पैसा आपको बना बनाया मिल जाए तो कौन कमाने जाएगा? पैसा कमाना उद्देश्य नहीं। क्या उद्देश्य है? भक्ति भी उद्देश्य नहीं, आनंद की प्राप्ति। हर कोई मजे चाहता है, राइट। आनंद मिलना चाहिए सब। अगर पैसा बना बनाया मिल जाए, किसी अमीर लड़की से शादी हो जाए तो कोई पैसा कमाने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। एक बार एक टीचर बच्चों से पूछती है, बताइए आप भविष्य में बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? तो कोई कहता है कि मैम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैम इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। एक बच्चे का टर्न आता है, रोहन तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? कहता है कि मैडम भविष्य में इतना अमीर बनना चाहता हूँ, इतना अमीर बनना चाहता हूँ कि मेरे 10-12 बैंक अकाउंट हो, इसमें हजारों करोड़ों की संपत्ति हो, 4-5 घर मेरे बंगले भारत में हो, 4-5 विदेशों में हो, 10-12 महंगी महंगी गाड़ियां मेरे घर के बाहर लगी हो, सैकड़ों नौकर चाकर मेरे पास में हो। मैडम बोली बस बस, निबंध निकलेगा थोड़ी बोला था, उनसे पूछा था क्या बनना चाहते हो? कोई बात नहीं, पूछा तुम बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? मैडम मैं बड़े होकर के रोहन की पत्नी बनना चाहती हूँ। सारी मेहनत इसको करने दो, हम घर पे बैठ के मजे करेंगे। लोग बड़े बुद्धिमान है, विशेषकर भारतीय लोग बड़े बुद्धिमान है, उनको पता है कि अपना काम कैसे बनना है। तो इसलिए बना बनाया पैसा मिल जाए तो कौन मेहनत करेगा भाई। हर कोई मजे चाहता है, राइट। और इस मजे के पीछे दुनिया पागल है, इस आनंद के पीछे दुनिया पागल है। क्यों लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों लोग पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि पैसे से सुख मिलता है, राइट। और
उसी सुख के पीछे लोग इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए चाइनीज में एक कहावत है, आपके आगे वर्णन आएगा जिसमें सुनिएगा। इसमें कहते हैं इफ यू वांट अ मोमेंट ऑफ जॉय टेक अ नैप। खुशी का वर्णन है कि अगर आपको एक पल की, एक क्षण की खुशी चाहिए तो क्या कीजिए, एक झपकी ले लीजिए, टेक अ नैप। नैप मतलब झपकी। हमारे भक्त लोग इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। वो झपकियां पे झपकियां लेते हैं, विशेषकर नाम जप के दौरान, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सो इतने अन्य ग्रहों की सुगम यात्राओं पे चले जाते हैं कि पता नहीं पड़ता प्रभु जी ध्यान लगा रहे हैं कि प्रणाम कर रहे हैं कि हरिनाम जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राइट। और विशेषकर झपकी चालू होती है सुबह सुबह भागवतम क्लास में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा पे झपकी खुलती है एकदम जब बोलते हैं शील प्रभुपाद की जय। हाँ प्रभु जी, प्रसाद का टाइम हो गया। राइट। सो इफ यू वांट अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस टेक अ नैप। एक्चुअली आप देखो, बाहर वालों को नींद नहीं आती। लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, उनको नींद नहीं आती। क्यों? जीवन में इतनी टेंशन है। और हमारे भक्त लोग ऐसे हैं, उनको हर जगह नींद आती है। आप कहीं भी सुला लो सो जाएंगे, इतनी नींद भरी हुई आंखों में। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप लोग माला करते हुए सोते क्यों? अरे भाई, माला करने से शांति मिलती है ना, और शांति में व्यक्ति क्या करता है? सोता है। तो इसलिए माला माला में हाथ डालती नींद आ जाती है, इतनी शांति मिल जाती है। यही तो प्रूफ है। ऐसा होता है। एक व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति, करोड़पति, बुढ़ापे में आया, उसको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया हो गया था, नींद नहीं आती थी। तो भक्तों ने कहा आप एक काम करो, आओ हमारे पास नींद की दवाई है। क्या दवाई है? टाइम टेस्टेड दवाई है, करोड़ों लोगों को नींद दिलाई हमने। क्या है वो दवाई? है आप हाथ में, झोली में अपना हाथ डालो, माला पकड़ो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो कैसे नींद नहीं आती। तो उसको सालों से इंसोम्निया था, प्रैक्टिकल केस है। एक दिन उसने माला की आधा घंटा, तो जाकर के उसको 5 मिनट नींद आई। अपने घर पे जाकर के 5 मिनट सोया वो। फिर दूसरे दिन फिर आया, कुछ तो सक्सेस मिला। फिर उसने आधा घंटा माला किया, तो उस दिन जाकर के उसको आधा घंटा नींद आई। ऐसा करते करते 5 पे छठे दिन जाकर के पूरा 6 घंटा सोया है घर में वो। इट्स टाइम टेस्टेड। क्यों? क्योंकि हरिनाम करने से जीवन में इतनी शांति, इतना आनंद आता है कि सारे दुख कष्ट कहाँ छुमंत्र हो जाते हैं पता नहीं लगता। इसलिए एक क्षण की खुशी चाहिए तो टेक अ नैप। आगे कहते हैं इफ यू वांट अ डे ऑफ हैप्पीनेस गो फॉर पिकनिक। अगर आपको एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या कीजिए? पिकनिक पे जाइए। आप लोग जाते हैं पिकनिक पे? सब जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। भक्त लोग भी जाते हैं, कीर्तन करते हैं, बढ़िया गेम्स खेलते हैं, प्रसाद खाते हैं, मस्ती करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, मौज करते हैं, पूरा दिन भर अच्छा लगता है। प्रभु जी आज तो मजा आ गया, पिकनिक में कितना आनंद आया। सो पिकनिक मेक्स अ डे। लोग घूमने के लिए जाते हैं, बाहर वाले पिकनिक में पता नहीं क्या क्या करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन भक्त लोग पिकनिक का बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं। राइट। आगे कहते हैं इफ यू वांट अ मंथ ऑफ हैप्पीनेस गेट मैरिड। एक महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए, उससे ज्यादा खुशी नहीं है उसमें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कोई शादीशुदा है यहाँ? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। हाँ, इंडिया में थोड़ा सीन अलग है, एक महीने से ज्यादा 1 साल की बना सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। राइट। और आजकल तो लोग इतने डरे हुए हैं, माय गॉड, शादियों का रेशो बहुत कम होता जा रहा है। डाइवोर्सेस का रेशो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग शादी नहीं कर रहे हैं। डाइवोर्स तब होगा जब शादी करेंगे। लिव इन कल्चर बढ़ता जा रहा है, लेकिन शादियां नहीं हो रही और डाइवोर्सेस कम होते जा रहे हैं। तो इसका कल्चर क्या है? इसका कारण क्या है कि लोगों को कॉन्फिडेंस चला गया। राइट। क्योंकि शादी एक बहुत पवित्र बंधन है जिसमें लोग एक दूसरे की सेवा करने का प्रण लेते हैं। व्यक्ति 7 मिनट 7 दिन साथ में नहीं रह सकता, 7 जन्मों की कसम कौन खाएगा भाई? आजकल वो कल्चर आ गया। इसलिए लिव इन कल्चर है, लोग साथ में रहते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते हैं। तो 1 महीने से ज्यादा की खुशी नहीं है। वैसे आजकल तो 1 महीने की खुशी भी नहीं है। मेरा एक मित्र था, अभी भी है, सीए, क्वालिफाइड सीए, एक अच्छी बैंक में मैनेजर। शादी की 14 दिन बाद लड़की जो है छोड़ करके चली गई। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी डिमांड्स हैं, अभी ये गहना चाहिए, अभी वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। 14 दिन तक उसने डिमांड पूरी करी, जब एक बार मना किया 14 दिन बाद चली गई। सिर्फ गई नहीं, उसके ऊपर 3 लीगल केसेस लगा दी। वो बेचारा मध्य प्रदेश राजस्थान में हर महीने कोर्ट की हियरिंग के लिए आता है। 25 लाख रुपए की एलिमोनी चाहिए मेरी जरूरतों की पूर्ति करने। लोगों ने धंधा बना लिया, आपको बताया, लोगों ने धंधा बना लिया है। एक लड़की दिल्ली की, उसने 10 शादियां करी, 10 शादियों से
आपको मैं बिजनेस आइडिया नहीं दे रहा हूँ, डोंट वरी। रोजी क्या बिजनेस आइडिया दिया है, बिना मेहनत के लाखों कर। लेकिन उस लड़की ने 10 शादियां करी, 10 शादियां करी और सबसे रकम मांग रही है, गुजारा भत्ता। इंग्लिश में एलिमोनी, हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं। इस 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे करके तो लोगों ने धंधा बना लिया। तो इसलिए लोगों को ये भी गारंटी नहीं कि 1 मंथ ऑफ हैप्पीनेस, 1 महीने की खुशी भी नहीं मिलेगी पता, 1 दिन की खुशी मिलेगी नहीं वो भी नहीं पता, राइट। विदेशों में ये कल्चर बहुत प्रेवलेंट है, वहां पर मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, एक को छोड़ा तीसरे से किया, दूसरे को छोड़ा तीसरे से किया। वैसे भारत में भी आ गए हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, राइट। 55 साल की मलाइका अरोड़ा, 30 साल के अर्जुन कपूर, क्या नाम है उसका, अर्जुन ही है ना, हाँ, तो उसके ऊपर लाइन डाल रही था। और उसके बड़े 18 साल, उसका बेटा 18 साल का हो गया, लेकिन उसको शर्म नहीं आ रही 55 साल की, बोलने में तो 55 साल की बुढ़िया ही कहेंगे, लेकिन दिखती नहीं है, और 30 साल के लड़के के ऊपर। सो इट्स अ कल्चर, राइट। सैफ अली खान ने जैसे शादी करी, उनकी पहली शादी में वो 10 साल की बच्ची थी, और बाद में तीसरी शादी उनसे कर ली उन्होंने। सो क्या चल रहा है भारत में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे तो ज्यादा अच्छा कुत्ते बिल्लियों का समाज है भाई, लेकिन मनुष्य होकर के इस प्रकार की हरकतें लोग कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग देम। वो सेलिब्रिटीज हैं, रोल मॉडल्स हैं लोगों के। एक बार कॉलेज में मैं गया, ऐसे रोल मॉडल चुनते लोग। एक बार कॉलेज में मैं गया तो एक बच्चा मुझसे मिलता था, अचानक से उसको मैंने कुछ दिनों बाद देखा, तो देखा उसके बाल बहुत छोटे हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ है। मैं देख करके डर गया ना, क्या हो गया, कुछ ऑपरेशन हुआ, दिमाग खुला, कुछ ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है, क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा। अरे प्रभु गजनी, गजनी क्या गजनी, अरे प्रभु जी मूवी आई है आमिर खान की गजनी। मैंने कहा उसमें क्या है, बोले आमिर खान की हेयर स्टाइल है। ये हेयर स्टाइल है पागल, ये कट लगा ऐसा लग रहा है, टाँके लगे हैं, इसको हेयर स्टाइल कहते हैं, मूर्ख बना। लेकिन लोग फॉलो कर रहे हैं, हीरो है, रोल मॉडल है साहब। तो वास्तविकता में जो रोल मॉडल हैं, भगवान यहाँ पर हैं, जगन्नाथ जी यहाँ पर हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, इनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, साधु संतों को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, अच्छे अच्छे राजा शिवाजी महाराज जैसे लोग, उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इन फालतू के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को, राइट। सो ये दुनिया है, ये दुनिया है। सो मैं बता रहा था, विदेशों में एक व्यक्ति ने शादी करी, तो एक व्यक्ति ने एक को छोड़कर दूसरी शादी करी, दूसरे को छोड़कर तीसरी शादी करी। आप बता सकते हैं कितनी शादियां करी उसने? मैक्सिमम 29 शादियां, 29 मैरिजेस। और उसकी जो वाइफ है उसने कितनी शादी करी? पहली वाइफ, उसने 18 शादियां करी, और इतने असंतुष्ट है, किसी से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा। आप सोचो 29 शादियां करा, अगर एक साल भी एक लड़की के साथ रहा हो तो 29 साल तो उसको शादी करने में निकल गया बेचारे। तो क्या कमाएगा, क्या करेगा? तो लोगों को पता ही नहीं जीवन जीना कैसे, राइट। 29 साल, अगर 29 शादियां करी तो 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में शादी कर रहा होगा। इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स के पिताजी, उसने बिल गेट्स की बेटी से शादी कर ली। बिल गेट्स का नाम सुना है आपने? नो सॉरी, एलॉन मस्क, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क के पिताजी ने अपनी खुद की पोती से शादी कर ली। ये विदेशी कल्चर है, और हम उसको, आप डर रहे हैं, जी क्या चल रहा है, हम सरल लोग हैं, हमको कुछ मत बताइए। सो इफ यू वांट अ मंथ ऑफ हैप्पीनेस, गेट मैरिड। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू वांट रियली हैप्पीनेस, डोंट गेट मैरिड। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में आ जाइए, बहुत खुश रहेंगे। राइट। इसलिए आगे कहते हैं, इफ यू वांट टू बी कॉन्स्टेंटली हैप्पी, अगर आप निरंतर खुश रहना चाहते हैं, सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा कीजिए। तो प्रसन्नता, खुशी किसमें है? खुशी भोग में नहीं है, खुशी है सेवा करने में। इस संसार में दो प्रवृत्तियां होती है, दो वृत्ति, एक होती है भोग वृत्ति, एक होती है सेवा वृत्ति। भोग वृत्ति मतलब मेरे लिए, मुझे मिलना चाहिए, आंखों से हमें अच्छा कुछ देखना है, मूवीज देखना है, क्रिकेट देखना है, लोगों को देखना है, हाँ, जिह्वा से अच्छा कुछ टेस्ट करना है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाकर के खाना है, बहुत कुछ खाना है। खाने की जहाँ तक बात है, चलो आपको इससे भी थोड़ा अवगत हम करा देते हैं। लोग आजकल क्या क्या खाते हैं? भारतवासी तो फिर भी ठीक है, समोसे कचौरी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 4-5 चाय पी लेंगे। लेकिन विदेशी लोग बड़े एडवांस्ड हैं। जब कोविड आया था, तब ये फेमस था कि कोविड कहाँ से आया? चाइना सी फूड मार्केट, राइट। चाइना में सी फूड मार्केट है, समुद्र से जो पदार्थ निकलते हैं, पदार्थ तो नहीं, समुद्र से जो जीव निकलते हैं, उन जीवों को वो खाते हैं। मैंने रिसर्च किया था कितने प्रकार के जीवों को पकड़ के खाते हैं समुद्र के, तो मुझे पता पड़ा समुद्र से 121 प्रकार के जानवरों को पकड़ के खाते हैं। उसमें आप जो जो अंदाजा लगा सकते हैं सब आ जाता है। मछली, शार्क्स, केकड़े, सांप, बिच्छू, हर प्रकार की चीज आ जाते हैं, राइट।
चाइना वाले ऐसे हैं, चाइना वाले बहुत मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं कि जमीन पे जो रेंगता है, जो चलता है उसको पकड़ के खाते हैं, पानी में जो तैरता है उसको पकड़ के खाते हैं, हवा में जो उड़ता है उसको पकड़ के खाते हैं। उनकी नज़र में जो आ जाएगा उसको पकड़ के खाएंगे। ये चाइनीज लोग हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं, वो समान दृष्टि देते हैं सबको। उनके लिए सब समान है। दिस इज चाइनीज कल्चर। और हाइट तो तब हो गई जब मैंने एक स्टैटिस्टिक्स देखा। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता पड़ा कि एक कॉफी है जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। कोई जानता है उसका नाम? आपने तो नेस्कैफे सुना होगा, नेस्कैफे कॉफी वो ट्रेनों में बेचते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी उसको कहते हैं साइवेट कैट कॉफी। क्या कहते हैं? साइवेट कैट कॉफी। उसकी कीमत है, जब मैंने रिसर्च किया था 5 साल पहले, उसकी कीमत है कि वो विदेशों में मिलती है 24,000 रुपए किलो और भारत में मिलती है 8,000 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि भारत में बनती है वो, इसलिए भारत में सस्ती मिलती है। कैसे बनती है वो? क्या है कि एक विशेष प्रकार की बिल्ली होती है, उसका नाम है साइवेट। साइवेट एक बिल्ली की प्रजाति है। तो उस बिल्ली को वो कॉफी बीन्स खिलाते हैं, जो अपनी नॉर्मल कॉफी बीन्स आती है ना, तो बिल्ली उसको खाती है। प्रोसेस करके जब वो मल त्याग करती है तो उस मल को सुखा करके वो कॉफी बनाते हैं, सुखा करके प्रोसेस करके, राइट। क्योंकि उसके पाचन से उस कॉफी का टेस्ट इतना बढ़ जाता है कि उसके मल को लोग सुखा करके कॉफी, और 24,000 रुपए किलो में बढ़िया दूध में मिला मिला के कॉफी लेते हैं। ये दुनिया है। तो कॉफी के नाम पर मल खा रहे हैं बिल्ली का, राइट। इसीलिए क्या चल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, राइट। ये सभ्यता नहीं बची, ये जानवरों से भी बदतर सभ्यता हम अभी जी रहे हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, लोगों को कुछ अकल नहीं। सारी सभ्यता लोग खो चुके हैं, राइट। इसलिए अगर सेवा करना ही है तो सेवा क्यों करना है, किसकी करना है, कैसे करना है, ये जानना जरूरी है। सेवा तो सभी करते हैं, एवरीवन सर्व्स, हर एक व्यक्ति सेवा करता है, बिकॉज सेवा किए बिना कोई रह नहीं सकता। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सो वर्णन आता है कि जीव का स्वरूप ही है कि वो दास है, स्वरूप के रूप में ही उसका दास ही कर्तव्य है और सेवा करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। लेकिन किसका दास है वो? कृष्णेर नित्य दास, वो कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन लोग भूल जाते हैं हम कृष्ण के नित्य दास हैं, इसलिए किसकी सेवा करते हैं? माया की सेवा करते हैं, राइट। इसलिए माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास। तो जो माया के दास हैं, आप उनके चेहरे देखेंगे ऐसे मुरझाए हुए चेहरे, इतने दुखी रहते हैं, इतने कष्ट में रहते हैं, ऐसा लगता है संसार का सारा बोझा, सारा दुख कष्ट, सारी परेशानियां इनके ऊपर है। लेकिन कृष्ण के भक्त, उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी जेब में, लेकिन इतने हंसते कृष्ण, इतना बढ़िया डांस करते हैं, खुश रहते हैं, मस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक आनंद कृष्ण की सेवा में, माया की सेवा में नहीं, राइट। तो हमें सीखना चाहिए। लोग सेवा तो करना चाहते हैं, सबकी सेवा करते हैं। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं। वही जब बड़ा हो जाता है तो पति पत्नी की सेवा करता है, फिर बच्चों की सेवा करता है, राइट। फिर बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं तो पोता पोती की सेवा करते हैं। जब घर में कोई नहीं बचता तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, राइट। मेरी खुद की चाची है, अब उन्होंने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, कुतिया पाल रखी है। उस कुतिया का नाम उन्होंने रखा है विस्की। क्या क्या नाम रखा है? विस्की। और उसको इतना बढ़िया अपने हाथों से खिलाती है और बोलती भी कि तो मेरे बेटे के समान है। अब बेटा उनका दुबई में जॉब कर रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बेटे के समान है, तो उनको अपने हाथों से खिलाएगी। जैसे बेटे से प्रेम करते हैं, ऐसे कुत्तों से प्रेम कर रहे हैं लोग। इंडिया में एक महिला है मुंबई में, उसने अपने घर में बिल्लियां पाल रखी हैं, उसको बिल्ली पालने का इतना शौक है। द हाईएस्ट रिकॉर्ड इज कि उसने अपने घर में कितनी बिल्लियां पाली पता है आपको? 56। अब तक 56 बिल्लियां पाली और 56 बिल्लियों की सेवा करती है। सबको नहलाती है, सबको खिलाती है, वो जो भी मल त्याग करती हैं सबको साफ करती हैं, सबको सुलाती हैं, सबकी बेड है, इतनी सेवा करती है। उसको लगता है हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। आजकल रील्स में यही चल रहा है, कुत्तों की सेवा, बिल्ली की सेवा करते हुए रोल रील्स बना रहे हैं, राइट। अरे बाबा, जीवन कुत्ते बिल्ली सेवा करने के लिए नहीं मिला है, जीवन भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। तो पीपल आर फॉरगेटिंग गॉड एंड दे आर सर्विंग डॉग। GOD, गॉड को भूलकर उसका उल्टा कर दो
DOG डॉग, डॉग की सेवा कर रहे हैं लोग। तो दुनिया पूरी उल्टी चल रही है, ये चल रहा है। इसलिए सेवा तो हमें करना है, लेकिन कैसे करना है। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं 50 पैसे में 50 लोगों की सेवा कर देता हूँ। अच्छा, इतना बुद्धिमान कैसे? मैं 50 पैसे की एक माचिस खरीदता हूँ, उसमें 50 तीलियां आती है, और जब भी कोई बीड़ी पीना चाहता है मैं जला करके उसको देना। तो हो गई ना 50 पैसे में 50 लोगों की सेवा। अरे नालायक, इसको सेवा कहते हैं? लोग पाप कर्म कर रहे हैं, तुम पाप कर्म को मदद करने में पाप कर्म को करने में उनकी मदद कर रहे हो, कह रहे हो कि 50 लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सो लोगों को पता नहीं सेवा करना कैसे, किसकी सेवा करना है। देखो, अब जो आतंकवादी हैं वो लोग भी बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, राइट, अल्लाह की सेवा कर रहे हैं, हमारे परिवार की सेवा कर रहे हैं, और सेवा के बदले हमको क्या मिलेगा? 72 हुर्रे मिलेंगे, राइट। तो उनका भी कंसेप्ट क्लियर, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो क्या सेवा है ये? नहीं, ये सेवा नहीं, राइट। इसलिए सेवा किसको कहते हैं वो ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सा कंपैरिजन मैं आपको देता हूँ। आप जब फ्लाइट्स में जाएंगे या होटल्स में जाएंगे, तो वहां पर है ना, एयर हॉस्टेस आपका वेलकम करेगी फ्लाइट में। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, कैन यू प्लीज शो मी योर टिकट सर, ओ 6E सर, दैट साइड सर, प्लीज गो दैट साइड, मैं हेल्प यू सर, कैन आई कैरी योर लगेज सर। बहुत इतना मीठे मीठे से बात करती, लोग बोलते हैं तो हमारी घरवाली बात नहीं करती इतना मीठा, तो ये इतना मीठा की बात कर रही, क्या प्रेम करती है आपसे? नहीं, आपकी पॉकेट से प्रेम करती है, उसको पैसा मिल रहा है इसलिए इतना मीठे से बात करती है। हो सकता है अपने घर में जाके अपने पति से वो भी लड़ाई झगड़ा करेगी, लेकिन आपसे मीठे से बात करेगी क्योंकि पैसा दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज द वर्ल्ड। लोग इतना मीठा बात करते हैं, बनावटी दिखाते हैं, दे हैव प्लास्टिक स्माइल ऑन देयर फेसेस, व्हाई? बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन वही एयर हॉस्टेस जो इतना प्रेम से बोल रही है, और यहीं पे हमारी माता, अगर हम उनसे कुछ मांगे, मम्मी भूख लगी है, तो 2 गालियां साथ में, अभी तो खाया था नालायक, कहा कि भूख लग रही है, चल बैठ जा सीधा शांत। तो मम्मी डांट भी देगी, मम्मी मार भी देगी। तो प्रेम कौन करता है, मम्मी करती है कि एयर हॉस्टेस करती है? अरे मम्मी तो डांट रही है, मार रही है, वो कैसे प्रेम करती है? डांट में प्यार, और प्यार में डांट नहीं, मतलब प्यार में प्यार नहीं। इट शुड कम फ्रॉम हार्ट। मम्मी को पता है हमारे भले के लिए क्या है, मम्मी हमारी सेवा करती। प्रेम का लक्षण है सेवा। जो प्रेम करता है वो सेवा करना जानता है। लव इज मैनिफेस्टेड थ्रू सर्विस, राइट। मान लीजिए एक पति पत्नी, अभी उन्होंने शादी किया है, पत्नी नई नई घर में आई है, पति ऑफिस जाना चाह रहा है, और एकदम नहा धो करके तैयार होता है, डार्लिंग वेयर आर माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं? तो ना कपड़े धुले, ना कपड़े प्रेस करके रखें, कपड़े धोए नहीं तुमने? नहीं नहीं वो सब छोड़ो, आई लव यू। अरे वो तो ठीक है, ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? जाना चाहता, खाना बनाया कुछ, लंच, टिफिन बॉक्स, ब्रेकफास्ट, लंच कुछ तो बनाया होगा? नहीं नहीं वो सब छोड़ो, आई लव यू। अरे तो क्या भूखा जाऊंगा? घर से लौट करके आता तो घर पूरा गंदा है, ऑफिस से लौट करके घर पूरा गंदा है, ना झाड़ू लगी ना पोंछा लगा। व्हाट्स हैपनिंग डार्लिंग, यू डिडंट क्लीन, आपने साफ नहीं किया। अरे वो सब छोड़ो, आई लव यू। तो क्या ये आई लव यू किसी काम का है? किसी काम का नहीं, क्योंकि प्रेम बोलने से नहीं दिखाया जाता। आई लव यू बोलने से प्रेम नहीं होता, प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेवा के माध्यम से अपने आप प्रदर्शित हो जाता है। जो जिससे प्रेम करता है उससे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उसकी सेवा करता है। आप जब घर में जाते हैं बाहर से, तो मम्मी आपका फेवरेट खाना बना के रखती है कि नहीं? आजा तेरे लिए दाल बाटी बनाएंगे, आजा तेरे लिए आलू के पराठे बनाएंगे, आजा तेरे लिए गाजर का हलवा बनाएंगे। क्यों करती है? बिकॉज शी लव्स, वो प्रेम करती। तो गाजर का हलवा बनाना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है बहुत, राइट। लेकिन मम्मी प्रेम से करती, भले खुद बीमार होगी, खुद भूखे रहेगी, लेकिन बेटे के लिए सब कुछ करेगी, बच्चों के लिए सब कुछ करेगी। दैट इज साइन ऑफ लव। तो सेवा, सेवा ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हमारा प्रेम प्रदर्शित होता है। तो उसी प्रकार से हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। कौन कौन भगवान से प्रेम करना चाहता है? वेरी गुड। तो कैसे प्रेम करेंगे? सेवा के माध्यम से। जो जितना अच्छे से सेवा करेगा, जितना ज्यादा सेवा करेगा, समझना चाहिए कि वो भगवान से उतना ज्यादा प्रेम करता है, राइट। इसलिए प्रेम करना तो है, लेकिन कैसे करना है आगे हम देखेंगे शास्त्रों से कुछ कहानी से। इस फोटो में आपको दिख रहा है कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति के पास आए हैं। ये लीला क्या है कि कृष्ण जो है बहुत विख्यात हो चुके हैं वृंदावन में। वृंदावन के बाहर भी छोटे से बालक हैं कृष्ण, 10-11 साल के। इतने असुरों को उन्होंने मारा है, इतने सारे असुरों का वध किया है, इतनी मधुर लीलाएं वो रचाते हैं गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, नंद यशोदा के साथ, पूरे वृंदावन के साथ, कि उनकी ख्याति हर जगह फैल चुकी है। वो असुर जिनसे देवी देवता भी कांपते हैं, अघासुर, बकासुर, ऐसे असुरों को कृष्ण ने चुटकियों में मार दिया।
तो लोग हैरान है कि कृष्ण है कौन। हमने सुना है छोटा सा बालक, 10 दिन का बालक पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, जिसका शरीर 8 मील लंबा है। 8 मील मतलब 12 किलोमीटर लंबा है। अब यहां से जाओगे तो मनासा तक पहुंच जाओगे, इतना लंबा पूतना का शरीर, और कृष्ण छोटा सा बालक, उसने मार दिया कैसे। तो कृष्ण के चर्चे हर जगह चल रहे हैं। तो 11 साल की उम्र में कृष्ण जाते हैं मथुरा। अक्रूर उनको लेने के लिए आते हैं कि चलो कंस ने आपको बुलाया है। तो कृष्ण और बलराम मथुरा जाते हैं, और मथुरा वासियों को पता पड़ता है कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं। वो इतने खुश हो जाते हैं कि हमारा इतना सौभाग्य कि हमको कृष्ण बलराम के दर्शन करने का मौका मिलेगा। पूरी मथुरा नगरी को लोग स्वच्छता अभियान में साफ कर देते हैं। वो पहला स्वच्छता अभियान था। पूरा साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं, सुगंधित पानी का। रास्ते में केले के पेड़ लगा देते हैं। कृष्ण आएंगे तो लोग रास्ते में हार फूल लेकर के खड़े हो जाते हैं। महिलाएं जो है छतों पर खड़ी हो जाती हैं, बालकनियों में, खिड़कियों की तरफ खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि महिलाएं साधारणतया सड़कों पर नहीं आती। लेकिन इस प्रकार से, और कृष्ण जो है अक्रूर उनको लेकर के आते हैं रथ में, और कृष्ण बलराम मथुरा के गेट के बाहर ही उतर जाते हैं। कहते हैं कि अक्रूर चाचा आप रथ लेकर के आगे चलिए, हम पैदल प्रवेश करेंगे। तो कृष्ण बलराम पैदल पैदल धीरे धीरे एकदम हाथी की तरह चलते हुए आ रहे हैं, और दोनों तरफ लोगों को देखते हुए आ रहे हैं। लोगों को देखते हुए, हंसते हुए, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। और लोग इतने खुश हैं कि हमारा सौभाग्य कृष्ण बलराम के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। राइट। जैसे सड़कों में कभी आते हैं ना, मान लीजिए यहाँ से नरेंद्र मोदी निकलेंगे तो कितनी भीड़ निकल जाती है, इतने सारे लाखों लोग। और सोचिए भगवान कृष्ण अगर निकल रहे हैं तो ये भीड़ कुछ नहीं है। स्वर्ग से देवी देवता भी कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं, कितने लोग आएंगे। तो लोग लालायित हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए, और कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम। तो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन आ रहा है कि कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करके रखे हैं। नटवर वपु, उनका रूप ही ऐसा है, शरीर ही ऐसा है कि मान लीजिए अभी अभी डांस करने जा रहे हैं। नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम, अपने कानों में कर्णिकार फूलों को उन्होंने धारण कर रखा है। बहुत सुंदर नीले कलर का फूल धारण कर रखा है। वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती फूलों की माला उन्होंने पहन रखी है। पीले कलर की चमकती हुई धोती सिल्क की उन्होंने पहन रखी है। इट्स सो ब्यूटीफुल। घनश्याम, घनश्याम उनका कलर है। ऐसी सुंदरता जब भक्त लोग देख रहे हैं वहां पे मथुरा वासी, तो अपनी पलक नहीं झपका रहे। इतना सुंदर कृष्ण का रूप है कि पलक भी नहीं झपका रहे, कि उतना क्षण भी वो सुंदरता को मिस नहीं करना चाहते। ये मथुरा वासियों की स्थिति है। ऐसा लग रहा है अपनी आंखों से कृष्ण की सुंदरता को पी रहे हैं वो। और कृष्ण चलते 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 लोगों को देखते 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 आते हैं एक फूल वाले के पास। इस फूल वाले के पास, इसका नाम है सुदामा। क्या नाम है? ये वो सुदामा नहीं जो कृष्ण का मित्र था गुरुकुल में, वो अलग सुदामा है, ये अलग सुदामा है। ये मथुरा में एक प्लेटफॉर्म पर कपड़ा बिछा करके हार फूल बेचता था। बस ये हार फूल बेचने वाला सुदामा है। शायद ब्राह्मण भी नहीं है, शूद्र होगा, और इतना गरीब है कि इसके पास गुंटी भी नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, नीचे बैठा है वो, राइट। गुंटी भी नहीं है, दुकान तो बहुत दूर की बात है। और भगवान जब उसके पास में आते हैं तो ये सुदामा कृष्ण को देख करके इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि उसकी दुकान पर जो सबसे अच्छे फूल माला होती है वो माला कृष्ण को पहनाता है। जो सबसे अच्छे फूल होते हैं उन फूलों से कृष्ण को सजाता है, कृष्ण के बालों में लगाता है, कृष्ण की कमर में लगाता है, अलग अलग जगह लगाता है। और भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि बोलते हैं, हे सुदामा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कृष्ण उनसे बोल रहे हैं कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तुमने जो सेवा करी है मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्या सेवा करी है? सिर्फ प्रेम से भगवान को फूल और माला अर्पित किया है, और कुछ नहीं। राइट। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सोचो भगवान आपके पास आ रहे हैं, राइट। आपका नाम क्या है? हाँ जी, देवांश। देवांश, मान लीजिए भगवान आपके पास आ रहे हैं, देवांश मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे वो दूंगा मैं। आप क्या मांगोगे? ठीक है, भक्ति मांगेंगे। और कोई? आपके पास आ रहे हैं भगवान, क्या मांगना चाहेंगे आप? जो मांगेंगे भगवान देंगे। आप लोग वर्ल्ड कप छोड़ करके यहाँ पर आए, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं?
वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और कोई और कुछ मांगना चाहता है? तो जी आपको क्या बताएं, क्या मांगना चाहते हैं? तो भगवान को ही बताएंगे हम। मन में इतनी सारी इच्छाएं, अब आप सामने बैठे मंदिर में बुलाया तो बोलना ही पड़ेगा, भक्ति मांगेंगे। बाकी मन में इच्छाओं के जो तूफान चल रहे हैं वो कैसे व्यक्त करेंगे? धनम देहि जन्म देहि देहि सुंदरीम भार्याम। सपनों में कौन कौन आता है प्रभु जी, आपको क्या बताएं हम। राइट, आपके सामने तो बोलना पड़ेगा भक्ति मांगेंगे, ठीक है, इतना भी काफी है। लेकिन प्राय बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भगवान के पास जाकर के मांगना चाहिए, पढ़ाई में पास करा दो। मुझे याद है मैं जब क्लास 4th में था तो हम पढ़ाई में तो डब्बा गोल थे, साल भर कोई पढ़ाई करी नहीं, कोई होमवर्क किया नहीं, बहुत चांटे खाए, बहुत स्लेटें खाई। अब एग्जाम के दिन अचानक से भक्ति जाग गई, सुबह सुबह जल्दी उठ करके मैं सुखमणि खोल के पढ़ने लगा। सिंधी परिवार से थे, 2 घंटा मम्मी बोलती चलो रिजल्ट ले लेंगे, मम्मी आप जाओ, मैं सुखमणि का पाठ करूंगा आज। ऐसे कोई चमत्कार हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री। तो 2 घंटा सुखमणि कर रहे हैं किस उद्देश्य कि भगवान पास करा देना। साल भर की मेहनत मत देखना, लेकिन 2 घंटे का सुखमणि का पाठ देख लेना। इस प्रकार की चीटिंग नहीं चलती, राइट। तो सोचिए इस सुदामा के पास स्वयं भगवान है, मांगने को क्या क्या नहीं मांग सकता। इसके तन पे कपड़ा नहीं, एक छोटी सी धोती उसने ओढ़ रखी है, ढक रखा है। दुकान नहीं है, मकान नहीं है, ऑफ कोर्स घर पे हो सकता है खाने के लिए भी प्रॉपर ना हो। भगवान से क्या क्या नहीं मांग सकता। भगवान कम से कम एक झोपड़ी दे दो, सिर छुपाने की जगह दे दो, एक दुकान दिला दो और खाने की व्यवस्था हो जाए। पर ये क्या मांगता है? श्रीमद् भागवतम में जो इसकी प्रार्थना है, एक श्लोक में प्रार्थना है, इतनी अद्भुत प्रार्थना है कि हमारे पूरे मिशन को वो एक ही श्लोक में समराइज कर देती है। आप सुनना चाहते हैं? मेरे पीछे दोहराइएगा। सो अपि ववरे अचलाम भक्तिम, को दिखाना पड़ेगा लगता है। दिख रहा है? सो अपि ववरे अचलाम भक्तिम तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दम् भूतेषु च दयां पराम। 3 चीजें मांगते हैं। सो अपि ववरे अचलाम भक्तिम तस्मिन्नेवाखिलात्मनि। हे अखिलात्मनि, हे भगवान, आप सभी के परमात्मा है, सभी की आत्मा है। अखिल आत्मनि, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, आप परमात्मा है। तस्मिन, तस्मिन मतलब आपके चरण कमलों में अचलाम भक्तिम, सबसे पहले मेरी इच्छा है कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति अचल बनी रहे, कभी भी विचलित ना हो। किसी भी परिस्थिति में आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति विचलित ना हो। अचला भक्ति, दृढ़ भक्ति आपके चरण कमलों में बनी रहे। इट्स नीडेड, राइट। हमारी भक्ति कैसी है? हमारी भक्ति चंचला भक्ति, विचलित होने वाली। जैसे मोमबत्ती की लौ होती है ना, अगर कोई हवा नहीं चल रही, एकदम शांति है, तो लौ एकदम सीधी जाती है। लेकिन थोड़ी हवा चलने लगती तो लौ फड़फड़ाने लगती। ज्यादा देर हवा चलती है तो बुझ जाएगी वो। ये मोमबत्ती की लौ है। ऐसी हमारी भक्ति है, मोमबत्ती की लौ के समान। जब कुछ नहीं है जीवन में, सब शांति है, तब प्रभु जी भक्ति कैसी चल रही है? अरे प्रभु जी एक नंबर, 16 माला, प्रभुपाद की बुक्स, वैष्णव संग, सब बढ़िया चल रहा है। जब थोड़ी कठिनाई आ जाती है, प्रभु जी बहुत बिजी हो गए, शेड्यूल बिजी हो गया, ऑफिस में काम ज्यादा आ गया, पढ़ाई ज्यादा आ गया, थोड़ी सी हवा चलने लगती तो भक्ति गड़बड़ा जाती। प्रभु जी माला कितनी हो रही? प्रभु जी सॉरी 8 माला हो पा रही है, यू नो पढ़ाई का प्रेशर है, एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत काम है, बॉस ने बहुत काम दे रखा है, अभी 8 माला हो गई। थोड़े दिन बाद प्रभु जी 4 माला हो रही, सॉरी प्रभु जी। प्रभुपाद की बुक्स, प्रभु जी वो क्या होता है? भूल ही गए प्रभात की बुक्स क्या होता है। सब भूल जाते हैं। और वहां जीवन में थोड़े ज्यादा कष्ट आ जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, लॉस हो जाए, तो भक्ति बुझ गई। माला कहाँ है? वो जी वो ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ रखी है, 6 महीने हो गए उठाई नहीं माला। तो सारी भक्ति बुझ गई। तो ये चंचला भक्ति होती। अचला भक्ति मतलब जीवन के किसी भी समय, कितने ही कष्ट, कितने ही दुख तकलीफें, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, भगवान की भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल कल एक विशेष दिन है। कल क्या है?
हाँ जी बोलिए, शर्माइए मत। कल ठंडा खाने का दिन है। हम्म, परसों कुछ लोग तो कल ठंडा खाएंगे। ठीक है, आप ठंडा खाइए। क्या भगवान को भी ठंडा खिलाना चाहिए क्या? कुछ लोग भगवान को ठंडा खिलाएंगे और कुछ लोग भगवान को कुछ नहीं खिलाएंगे। अरे भगवान, उनको फास्टिंग की जरूरत है क्या? आप ठंडा खाइए, फास्टिंग कीजिए, चलेगा, लेकिन भगवान को क्यों फास्टिंग करा रहे हो? उनको तो कम से कम बना कर ही खिलाना चाहिए, राइट? हाँ वही तो, क्यों नहीं बनता? खुद के लिए मत बनाइए, भगवान के लिए तो बनाइए। भगवान की सेवा पूजा तो चलना चाहिए ना। ठीक है। सो सो अपि ववरे अचलाम भक्तिम तस्मिनेवा अखिलात्मनि, आपके चरणों में कैसी भक्ति बनी रहे? अचला भक्ति। दूसरा वरदान, तद भक्तेषु च सौहार्दम, हे भगवान, दूसरी मेरी इच्छा है कि आपके भक्तों के साथ मेरा सौहार्द, मित्रता बनी रहे। आपके भक्त ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो अपने जीवन में, राइट? सौहार्दम मतलब सुहृद, जो मुझे हृदय के सबसे नजदीक, सबसे प्रिय हो। तो मैं किसी व्यक्ति को भौतिक जीवन में प्रिय नहीं बनाना चाहता, आपके भक्तों का प्रिय बनना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, वो प्रार्थना कर रहे हैं वृत्रासुर। न नाकपिष्ठम न शपारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसा त्वां विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, न तो मुझे स्वर्गलोक चाहिए, न पाताल लोक चाहिए, न इस जगत का मुझे साम्राज्य चाहिए, न मुझे योग सिद्धि चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे बस आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। और मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके भक्तों का सख्यम, उनकी मित्रता चाहिए। भगवान का सबसे बड़ा वरदान पता है क्या है? जब वो हमें अपने भक्तों का संग प्रदान करते हैं। जिसके जीवन में भगवान कृष्ण के भक्त लोग आ गए, आप समझ लीजिए भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। सबसे बड़ा आशीर्वाद धन संपदा नौकरी मिलना ये सब नहीं है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है भक्तों का संग प्राप्त करना। इसलिए बोल रहे हैं तत् भक्तेषु च सौहार्दम। और तीसरी प्रार्थना, भूतेषु च दयाम पराम, ये भगवान आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं सभी जीवों के प्रति अपनी दया दिखा सकूं, सबके ऊपर करुणा दिखा सकूं, किसी से शत्रुता ना करूं, किसी से ईर्ष्या ना करूं, सबसे प्रेम करूं, सबके ऊपर करुणा दिखा सकूं। देखिए कितनी अच्छी प्रार्थना है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि भक्ति कर सकूं, भक्तों से मित्रता कर सकूं और दया दिखा सकूं। ये आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है। इसलिए एक श्लोक में वर्णन आता है जिसमें कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिया शांत, कृष्ण भक्त निष्काम मतएव शांत। कृष्ण भक्त पूरी तरीके से शांत हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, उनकी सिर्फ एक इच्छा है भगवान की भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की। लेकिन इसके अलावा दूसरे लोग जो हैं वो भुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, दुनिया के ऐश्वर्य चाहते हैं, वो लोग पूरी तरीके से अशांत हैं। जिसके मन में जितनी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो उतना अशांत है। और जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, वो शांत है। तो शांति का सूत्र क्या है? इच्छाओं से बचना, राइट? तो ये सेवा हम प्रेम से भी कर सकते हैं, ये सेवा हम ग्रजिंगली भी कर सकते हैं। तो कोई कह सकता है प्रभु जी सेवा करे कैसे? अरे हमको घर में खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप सेवा की बात कर रहे हो, भगवान के लिए क्या लेकर के आएंगे? आटा खरीदने के हमको पैसे नहीं, दाल खरीदने के पैसे नहीं, शक्कर खरीदने के पैसे नहीं, क्या सेवा करेंगे? तो कितने पैसे चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए? कौन बता सकता है? सेवा करने के लिए कुछ तो चाहिए ना? क्या चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, बताइए? भाव चाहिए। और क्या चाहिए? कितने भाव चाहिए? भक्ति भाव चाहिए, मुझे लगा 2 किलो 4 किलो। ठीक है, और कोई? कितना लगता है भगवान की सेवा करने के लिए? मिनिमम कितनी धन दौलत होना चाहिए? क्या कभी किसी भक्त ने आपसे मांगा है कि माता जी यहाँ पे आने की फीस है 500 रुपए मेंबरशिप फीस? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेवा देने के लिए कुछ पैसा लगता है? नहीं लगता। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इट कॉस्ट नथिंग टू सर्व। सेवा देने के लिए कोई कीमत नहीं है। कैसे? भगवान गीता में क्या मांगते हैं? कुछ मांगते हैं ना भगवान? क्या मांगते हैं? कौन से श्लोक में मांग रहे हैं? हाँ,
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अष्टामी प्रयतात्मनः। भगवान मांग रहे हैं कि मुझे पत्ता दीजिए, पुष्प दीजिए, जल दीजिए, फल दीजिए। ये तो कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी पेड़ से तोड़ के ला के दे सकता है। जल में भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि मुझे बिस्लरी का फिल्टर्ड वाटर दीजिए, नहीं, कोई भी जल, कुएं का जल, नदी का जल भी चल जाएगा, अनफिल्टर्ड भी चल जाएगा, लेकिन यो में भक्ति आप प्रेम से दीजिए। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है शबरी। शबरी की कहानी आप सब जानते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग। शबरी एक बहुत ही विशेष महिला थी, और जब वो जवान थी, देखने में शबरी किस प्रकार थी, किसी को पता है? बहुत सुंदर थी। शबरी बहुत बदसूरत थी, उसका कलर डार्क था और देखने में भयानक थी। बदसूरत भी कम होता है, भयानक थी। जो इसको देखने के लिए आते थे वो डर के भाग जाते थे, ऐसी स्थिति थी शबरी की, राइट। कितने ही रिश्ते आए, कितने ही रिश्ते चले गए, इसकी शादी नहीं हो रही थी। सालों साल निकल गए, इंतजार करते 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 कोई तो शादी करेगा। फाइनली एक रिश्ता इसका तय हुआ। वो किस कंडीशन पे तय हुआ कि उस समय सौभाग्य से लोगों ने इसको देखा नहीं था, क्योंकि एक घूंघट में थी, क्योंकि पहले कई बार इस प्रकार शादियां हो जाती थी। फाइनली शादी का दिन आ गया। शादी के मंडप में शबरी बैठी है, दूल्हा पास में बैठा है। अब समय आया है कि दूल्हे को इसकी मांग भरना है। तो घूंघट में तो मांग नहीं भर सकते, तो मांग भरने के लिए जैसे ही घूंघट उठाता है तो पहली बार इसका देखता है, भैया दुल्हन कौन है, शक्ल तो देखो। तो उसका उस समय ब्यूटी पार्लर्स नहीं हुआ करते थे एक्चुअली, नहीं तो वो शबरी को भी कोई राजकुमारी बना देते। तो मांग भरने के लिए घूंघट उठा के देखता है, और देख करके इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वहीं से उठ करके भाग जाता है। शादी के मंडप से उठ करके भाग जाता है। सोचो, लड़कियों को पता होगा कि अगर ऐसा किसी लड़की के साथ हो, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, राइट। तो शबरी उस समय निश्चय करती है कि मुझे शादी नहीं करना, ये जीवन किसी काम का नहीं है, और वहीं से वो छोड़ करके चली जाती है जंगल में, मतंग मुनि के आश्रम में। मतंग मुनि की सेवा करने के लिए चली जाती है। पूरा जीवन वो मतंग मुनि की सेवा करने के लिए तत्पर है। तो ऐसे कई साल मतंग मुनि की सेवा शबरी करने लगी। बहुत सरल सेवा, पानी भर के लाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यज्ञ सामग्री वगैरह में कुछ लकड़ियां वगैरह चाहिए तो वो लेकर के आना, गाय का दूध निकालना, घी बनाना, ये सब ऐसी छोटी छोटी सेवाएं शबरी करने लगी। और मतंग मुनि उसके सालों की सेवा से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया कि शबरी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि स्वयं भगवान राम अपने पैरों पर चल के तुम्हारे पास आएंगे। ये गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया, स्वयं भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे, तुम बस उस दिन की प्रतीक्षा करो। और उसके बाद मतंग मुनि वहां से प्रस्थान कर गए, और शबरी इतनी प्रसन्न हुई आशीर्वाद प्राप्त करके। अब मतंग मुनि ने बताया नहीं कि राम कब आएंगे, ये नहीं बताया, लेकिन बोला कि आएंगे, जरूर आएंगे। तो वो शबरी प्रतीक्षा करती थी इस आशा में कि हो सकता है आ जाएंगे राम। तो रोजाना सुबह उठती थी, उस कुटिया में झाड़ू करके रखती थी, पोछा लगा के रखती थी, उस जंगल से सुंदर सुंदर फल फूल वगैरह तोड़ करके ला के रखती थी, पास में नदी थी, पानी भर के ला के रखती थी, चटाई साफ करके रखती थी, भगवान राम आएंगे तो उनको चटाई पे बिठाऊंगी, फल खिलाऊंगी, फूल से सजाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, ये बातें करूंगी, ये प्रार्थनाएं करूंगी। सोच सोच से खुश होने लगी कि राम आएंगे, राम आएंगे, क्या क्या करूंगी। एक दिन निकला, 2 दिन निकल गया, ऐसे करते 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 सालों निकल गए। शबरी बूढ़ी हो गई। हर रोज वो प्रतीक्षा करती रही, फूल फल तोड़ करके लाती रही, पानी लाती, हो सकता है आ जाएंगे राम, आ जाएंगे, आ जाएंगे। करते करते उसकी उम्र बूढ़ी हो गई, वो कमर झुक गई उसकी, राइट। लेकिन फिर भी उसको गुरु के शब्दों पर विश्वास था, मेरे गुरुदेव ने कहा है तो राम स्वयं आए, राइट। और वो समय था लगभग स्प्रिंग का, यही समय था जिस समय बेर आना चालू हो जाते हैं, राइट। अब उस समय उस जंगल में और कोई फल नहीं था, तो कौन से फल लेकर के आई वो? बेर। और उस समय भगवान राम आ गए। अब जब बूढ़ी हो चुकी है, बाल सफेद हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, और कोई फल नहीं है, भगवान राम आ चुके हैं, इतनी प्रसन्न है, भगवान राम को बिठाती है, पत्थर पर बिठाती है चटाई बिछा करके, और राम को प्रणाम करती है, और राम की सेवा करना चालू करती है, फल खिलाती। कौन सा फल खिलाए? बेर। अरे लेकिन बेर तो खट्टा भी होता है, तो खट्टा खट्टा बेर नहीं खिलाऊंगी, मीठा खिलाना चाहिए। अब मीठा बेर कौन सा है, कौन सा पहचानूंगी, ऐसे तो समझ में नहीं आता। तो चक्कर देखती है, चक्कर की मीठा है कि खट्टा है, नहीं 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 खट्टा है, इसको फेंको। दूसरा मीठा,
हाँ ये बहुत मीठा है, भगवान राम आप ये खाइए। वो इधर लक्ष्मण देख रहे हैं बुढ़िया क्या कर रही, पागल हो गई, झूठा बेर खिलाते हैं राम को। देखो लक्ष्मण का चेहरा कैसे देख रहे हो। तो लक्ष्मण गुस्सा हो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, राम जी मना कर देते हैं, तुम नहीं समझोगे, यहाँ पर अभी लव अफेयर चल रहा है हमारा। ये प्रेम की बातें तुम नहीं समझोगे, इसलिए डोंट डिस्टर्ब। और स्वयं भगवान राम झूठे बेर खा रहे हैं शबरी के। कैन यू इमेजिन, कौन झूठा खाता है? एक बुढ़िया थी, अम्मा थी, तो अचानक से एक लड़के को बुलाती, उस लड़के का नाम होता है राजू। राजू इधर आओ, वो आता है, ये लो काजू। राजू को दे रही है काजू, और राजू बढ़िया खुश हो गया, काजू मिल गया। वो नाश्ता नाश्ता, छोटा सा बालक था, नाश्ता नाश्ता काजू खा करके जाता है। अगले दिन फिर राजू काजू। तो ऐसे करके 5-6 दिन निकल गए, रोजाना काजू मिल रहा है। तो उस दिन उसने पूछ लिया कि अम्मा ये क्या बात है, आप काजू कहाँ से ला रहे हो, मुझे काजू कैसे दे रहे हो? तो बोलते कि देखो मुझे क्या चॉकलेट खाना बड़ा पसंद है, और ये जो मेरे पास चॉकलेट आई है इसके अंदर काजू है। अब मेरे दांत तो है नहीं, तो जीवान से मैं चॉकलेट तो चाट लेती हूँ। अब जो काजू बच जाता है उसका क्या करूंगी? तो सोचो अगर हमें कोई ऐसा काजू ला करके दे, कितने लोग खाएंगे? कोई नहीं खाएगा। लेकिन भगवान राम शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान राम झूठे बेर खा रहे हैं, सोचिए राम जी की विनम्रता, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। और इस कारण सिर्फ ये छोटी सी सेवा, झूठे बेर खिलाने से शबरी इतनी महान बन गई कि बड़े बड़े ऋषि मुनि शबरी की लीला पर चर्चा करते हैं। कोई बड़ी सेवा नहीं करी, बहुत छोटी सेवा है, लेकिन सबसे मुख्य क्या है? प्रेम। जो प्रेम से उन्होंने करी वो प्रेम अद्वितीय था। इतना प्रेम से कभी किसी ने बेर फल फ्रूट भगवान को नहीं खिलाया, किसी ने भोग नहीं लगाया। तो एक गीत भी है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, आगे क्या है, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो अगर कोई खिलाना लग जाए तो भगवान सब खाते हैं, बस वो प्रेम की कमी है, राइट। ऐसे ही सुंदर वर्णन आता है कुब्जा का। कुब्जा, मथुरा में जब भगवान आते हैं तो सुदामा के बाद आते हैं कुब्जा के पास, जिसकी कमर झुकी हुई होती है। तो कुब्जा कृष्ण को देख, ये भी बूढ़ी होती है, कृष्ण को देख करके इतनी प्रसन्न होती है कि कृष्ण को, उसके हाथ में चंदन होता है, वो चंदन कृष्ण को लगाने लगती है, बहुत प्रेम से चंदन से सजाने लगती है। और कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं उसके सेवा से कि कृष्ण क्या करते हैं, अपना एक पैर उसके पैर के ऊपर रखते हैं और एक हाथ से उसकी चिन ठुड्डी के ऊपर हाथ रखते हैं और एक जर्क देते हैं, और कुब्जा एकदम सीधी हो जाती है, उसका कुबड़पन खत्म हो जाता है, बहुत सुंदर यंग युवती बन जाती है वो। ये कुब्जा थी, राइट। ये कृष्ण लीला में वर्णन आता है। ऐसी एक और सुंदर लीला आती है, ये भी आपने देखी होगी, कि भगवान कृष्ण छोटे से हैं और उस समय नंद गांव में एक महिला आती है फल लेकर के, फल ले लो फल, राइट। तो नंद बाबा कुछ फल खरीदना चाहते हैं और नंद बाबा क्या करते हैं, एक टोकरी चावल लेकर के आते हैं, क्योंकि उस समय पैसे का आदान प्रदान नहीं होता था, उस समय बार्टर सिस्टम था। तो एक टोकरी चावल लेकर के आते हैं कि इसको चावल देंगे और इससे एक टोकरी फल हम ले लेंगे। तो कृष्ण देख लेते हैं, छोटे से नन्हे से कृष्ण, कि नंद बाबा लेकर के आ रहे हैं चावल और इसको फल दे दिए, तो मुझे भी फल चाहिए। तो वो अंदर जाते हैं, अंदर से अपनी दोनों मुट्ठी भर के चावल लेकर के आते हैं। अब छोटा सा बालक, छोटी सी मुट्ठी, कितने चावल आएंगे, उसमें भी संभाल नहीं पा रहे हैं, चावल बिखरते बिखरते आ रहे हैं। आखिरी में आकर के खोला तो 5-6 दाने यहाँ बचे, 5-6 दाने यहाँ बचे। लेकिन वो महिला कृष्ण को देख करके इतनी खुश हुई, इतना सुंदर रूप, छोटा सा बालक, इतना अद्भुत बालक, कि देख कर ही कृष्ण की सेवा करना चाह रही थी। तो कृष्ण की पूरी झोली उसने फलों से भर दी, जितने फल कृष्ण उठा सकते थे कृष्ण को सारे फल दे दी, राइट। और कृष्ण जैसे फल लेकर के अंदर जाते हैं, वो महिला जब पलटती है तो देखती है कि उसकी फल की टोकरी किस में कन्वर्ट हो गई, सोने चांदी हीरे जवाहरात। तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान ने उन्हें अपना प्रेम प्रदान किया, उसके हृदय में कृष्ण के लिए दिव्य भक्ति, दिव्य प्रेम जागृत हो गया। जीवन भर वो कृष्ण की भक्ति करती रही, कभी कृष्ण को भुला नहीं पाई, वही बाल रूप में कृष्ण की भक्ति करती रही हमेशा। ये फल वाली, ऐसे शास्त्रों में कई सारे उदाहरण हैं जिसका वर्णन किया जाता है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, वो कहा करते थे, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा बट सर्व हिम इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि ये आंखें धोखा देती हैं, राइट। भगवान अगर सामने भी खड़े हो जाएं तब भी भगवान को हम नहीं पहचान पाएंगे कि कृष्ण, कृष्ण स्वयं साक्षात उपस्थित थे। कितने लोगों ने कृष्ण को भगवान के रूप में माना, बताओ। क्या दुर्योधन ने माना? क्या कर्ण ने माना? क्या कौरवों ने माना?
कृष्ण तो सामने थे ना। सबसे पहला विराट रूप कृष्ण ने किसको दिखाया था, अर्जुन को कि दुर्योधन को? दुर्योधन को। लेकिन कृष्ण दुर्योधन क्या बोलते हैं, ये तो कोई मायावी है। उसके बाद भी नहीं पहचान पाए। इसलिए भगवान को देखने की योग्यता आंखें नहीं है, भगवान को देखने की योग्यता है भक्ति। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान को देखने की योग्यता क्या है, प्रेम। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, वो प्रेम होना चाहिए, राइट। इसलिए अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं सो हमें चाहिए प्रेम। और प्रेम का प्रदर्शन कैसे होता है, वो होता है सेवा के माध्यम से। कौन कौन भगवान के प्रेम करना चाहता है, प्रेम प्राप्त करना चाहता है? वेरी गुड। तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सेवा करना पड़ेगा। कौन सी सेवा करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पर आकर के भक्तों से मिलिए, उनसे बोलिए कि प्रभु जी, माता जी, हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ पर भगवान से जुड़ने के लिए आए हैं। हमें वर्ल्ड कप फाइनल छोड़ करके कोई दुख नहीं हो रहा है। वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल तो हर 4 साल में आ जाता है, लेकिन भगवान मिले ना मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप हमें जोड़िए, हमें सेवा दीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए। हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। ऐसे आकर के उनके सामने प्रस्तुत रहिए, राइट। थैंक यू सो मच। आई विल स्टॉप हियर। 1 घंटा हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न? यस सार्थक, डू वी हैव एक्स्ट्रा माइक हियर? मदन मंटू, एक्स्ट्रा माइक है क्या? दीजिए। हाँ जी। हरे कृष्णा जी। डॉक्टर पूरी प्रश्न का कि आपने क्लास में स्लाइड दिखाई थी, उसमें आपने जो एक उपदेश बताया था कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए कि भगवान स्वयं हमारे समक्ष आए। एक और इस प्रकार का बहुत भी बताया जाता है कि हम भगवान को देखने की उत्कंठा विकसित करनी चाहिए, उसके उपरांत ही भगवान हमें समक्ष आएंगे। तो इन दोनों को हम कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं? जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो अपने आप उत्कंठा डेवलप हो जाएगी। बिना सेवा के उत्कंठा डेवलप करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सेंटिमेंट्स हैं। भगवान भाव से मिलते हैं, भावुकता से नहीं मिलते हैं। भावुक तो बहुत लोग हो जाते हैं, राइट। अभी इंडिया हारेगी या जीतेगी, जो भी होगा, है ना, तो जीतेगी तो फटाके फूटेंगे, हारेगी तो टीवियां फूटेंगी, राइट। तो ये भाव है कि भावुकता है? ये भावुकता है, राइट। यही लोग जो भगवान के सामने रोते हैं, कल से मूवी थिएटर में जाएंगे, हीरो पिटाई खाएगा, हीरोइन को लोग मारेंगे तो भी रोने लगेंगे। सो भाव में और भावुकता में अंतर है। इसलिए सेवा के माध्यम से जो मन में भावना जागृत होती है वो वास्तविक भाव है भगवान के लिए, राइट। सेवा को छोड़कर के अलग से भगवान को देखने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं। ओके, और कुछ? आस्था और श्रद्धा दोनों लगभग समान ही है, समानार्थी शब्द ही, राइट, ज्यादा अंतर नहीं है। फिर भी तत्व की दृष्टि से देखना चाहें, आस्था एक जनरल टर्म है, लोगों की आस्था बहुत लोगों में हो सकती है, लेकिन श्रद्धा स्पेसिफिक है। श्रद्धा और प्रगाढ़ता का उसमें है, जिसमें गाढ़ापन है श्रद्धा में। और यही श्रद्धा जितनी गाढ़ी होती जाती है वही श्रद्धा धीरे धीरे प्रेम में कन्वर्ट होती है, राइट। ओके, और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी, ऐसे जोर से बोलिए, माइक जाएगा वहां तक, चेक करो मदन मंटू। प्रभु जी, आपके मन में कैसे इस मार्ग पे आने का हुआ कि मैं इस मार्ग पे चलूंगा, यहाँ तक पहुंचे, इसके पीछे क्या है? आप सबका आशीर्वाद है। आप जैसे वरिष्ठों का आशीर्वाद मिला इसलिए ऐसी जागृत इच्छा जागृत हुई। नहीं, कोई विशेष नहीं, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ भाई। आप जैसे वरिष्ठों का आशीर्वाद है इसलिए सब है, और कुछ नहीं। वैष्णव संघ है, भक्तों का संग मिलता है तब जाकर के भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग के प्रभाव से मन में भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। तो मेरा सौभाग्य था, भगवान की कृपा से मुझे
छोटी उम्र से ही साधु संग करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो उन साधुओं की कृपा से ये इच्छा जागृत हुई और आप सब जैसे भक्तों का आशीर्वाद भी। थैंक यू। और कोई प्रश्न? Okay, tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. No questions. Complete. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada की। हरे कृष्णा। यहाँ पे क्वेश्चन। कैसा लगा आप सभी को सेशन? एक बार जोर से हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जैसा कि आज हाँ जैसा कि आज प्रभु जी सेवा के विषय